with our class today. Recording progress. So I welcome you all to the session of May-June 2026. And I am Sir Saifullah and I teach business. And I have been teaching business for the past 10 years now. It has been 10 years. And I have done MBA in finance. And I'm associated with multiple schools, including Beacon House, Credo College as well. So yeah, I also have my YouTube channel and you guys can go there, you guys can subscribe it, and you guys can watch some videos as well over there, which I have uploaded for students across the globe. So there are many students that I teach across the globe as well, from Portugal, UAE, and Saudi and many parts of the world. So for my, you can access my YouTube channel as well. Plus the classes which I will be providing you online using this platform or anywhere in on-site in Ken, DHA or PCHS. So basically in these classes, what I'm going to provide you is, of course, the lecture that I will be delivering on-site or online. And along with that, you will be getting your notes as well. The notes, not the book, basically the notes, the simplified version of the book, which will help you in preparing for your examinations. And of course, I'll be sharing recorded lectures as well because in case if you're missing any class, in case you have some family commitments, in case you are unable to attend the class, so you guys can have the recorded access to the recordings. Basically, the recorded lectures are also specifically built for the students who are unable to understand in the classroom as well, so they can rewatch the video to get their concepts more clear. And the main thing which I believe that the students today want from the teacher is the support till the end. So inshallah, through the years, it's been 10 years. I never leave my students till the end. Matlab paper se ek din pehle bhi, I'll be there for you guys. I'll be preparing for you guys. I'll be solving your queries and full support will be provided inshallah till the day of the exam. So that's the main thing. All right, moving on. So as a business as a subject to learn in O levels, I wouldn't say that it is a much difficult task to do by the students because businesses you can see in your daily lives, आप बाहर निकलते हैं, there are various businesses आप देखें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा business जो है वो operate कर रहा होता है. So business study करने में सही है it or या concept लेने में inshallah you will not have that much difficulty. Of course there are some technical you can say terminologies and well there are some technical concepts as well which you might find difficult, but learning business is much way easier. So let me just show you guys a syllabus of O levels business studies at a glance. So basically our O levels business, O levels IGCSE business have the same syllabus content. So the syllabus code is 7115. And basically, in this, you have 5 main units. Now, basically, these are units, and in this units, you have different chapters to learn. Basically, the first 5 chapters are from unit number 1, that is understanding business activity. In this particular unit, what we are going to learn is that what is a business and what are the different types of business, how the businesses are managed, how the businesses take start up the risk, who are the stakeholders of the business, basically who are the people who are interested in the business. So this unit completely explains you the concepts, the different types of businesses, how the business grows, and all these chapters are included in unit 1. Then we have unit 2. Guys, am I audible? Please, can you guys just confirm? Is my voice clear? All right, all right, all right. All right, so in unit 2, basically, we have people in the business. This unit is people in the business, and basically, in this particular unit, we study how the employees in the business, there are workers in the business, in every business, there are some workers, and how they are managed. So this whole unit, ये पूरा unit आपका cover करता है कि how the workers are managed in the business. Then we have unit number 3.
Of course, unit number 3, then unit name itself is marketing, which is the most important, I can say, part or aspect of the business. And आपके syllabus से भी related अगर मैं करूँ, तो marketing is basically the most important topic of all. ठीक है, आपकी मार्केटिंग जो है, सही है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ द बिजनेस एक्चुअली मार्केट इटसेल्फ, तो ये कि बेसिकली वो अपनी प्रमोशन कैसे करता है. सो डू यू गाइस हैव एनी आइडिया ऑफ मार्केटिंग के, बेसिकली मार्केटिंग कैसे करी जाती है, और एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? यस गाइस, just a second, I'll just disable this annotation. uh, as can you just stop writing on the screen, please? Thank you. Yes guys, any idea of marketing? आप देखें, आप बाहर निकलते हैं, you guys must be using social media as well, right? You guys must be using social media. तो social media पे you guys must be watching different advertisements, right? Different ads आते होंगे, सही है. Like for example, if you're thinking to purchase, you can say a shirt, तो आपके पास आउटफिटर्स का ऐड आ रहा होगा, आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स का ऐड आ रहा होगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली मार्केटिंग. तो आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी की वजह से, एआई की वजह से इतना ज्यादा मार्केटिंग बेहतर से बेहतर हो गई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ गूगल पे कोई चीज सर्च करूँ ना, कि अगर मुझे जो है, या इट्स ओके हिबा, इट्स ओके, आई गेट इट, सॉरी, इट्स ओके, ओके, नो नीड टू राइट इट ऑन स्क्रीन. थैंक यू. ओके, सो बेसिकली अगर मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ कि मुझे जो है वो कोई शर्ट खरीदनी है, तो इट अपीयर्स ऑन माय इंस्टाग्राम, इट अपीयर्स ऑन माय फेसबुक एज वेल, राइट? सो बेसिकली मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि मार्केटिंग, आप अपने ब्रांड को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे, उतना ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और उतने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे. सो in this particular unit we are going to cover all the marketing concepts. Unit 4 has operations management. Operations is basically के एक फैक्ट्री होती है, जैसे गाड़ी की एक फैक्ट्री है टोयोटा की. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस एज वेल, इंटरेस्टिंग वन. जैसे टोयोटा अगर कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, सही है, तो वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रहा है? व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट टोयोटा इज यूजिंग टू मैन्युफैक्चर दैट कार्स? वो सारी चीजें हम लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. एंड माय क्वेश्चन टू यू इज गाइस, यू गाइस कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको. कि व्हाट डू यू थिंक कि टोयोटा की फैक्ट्री में एक गाड़ी जो है, मतलब एक पर्टिकुलर गाड़ी जो है कितने देर में तैयार होती है? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू गाइस. तो आप लोग चैट बॉक्स पे इसका आंसर लिख सकते हैं. एंड देन लेट्स मूव ऑन विथ यूनिट नंबर 5, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस. बेसिकली ये जो यूनिट होता है, ये हमारा पूरा यूनिट जो है वो कवर करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बेसिकली इसके अंदर हम लोग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये वो क्या होते हैं, ये आप अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे. साथ साथ इसके अंदर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे, रेशियोज वगैरह. मतलब पूरे बिजनेस का जो हिसाब किताब होता है ना, जो अकाउंटेंट्स हमारे हिसाब किताब कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ रहे होंगे. So there's a question on the screen, okay, which is the most difficult unit. So students feel that like past 10 years say what the students feel most challenging is marketing and finance. ये दो चैप्टर यूनिट्स हैं आपके, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है. बेसिकली बच्चे को ये समझ में नहीं आता, बिकॉज ऑफ कोर्स फाइनेंस लिटिल बिट उसमें कैलकुलेशन आ जाती है, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. के मतलब ये कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर ये समझ नहीं आएगा. यस, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, बट स्टूडेंट ग्रेजुअली अंडरस्टैंड. So this is your syllabus at a glance, and I hope if guys you have any questions, you guys can ask in the chat box, or should we move forward with the most important aspect of the business studies O level. सबसे अभी ये सिर्फ syllabus था, अभी हमने important चीज, इस जो most important चीज है उसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा. जी बच्चों, so any queries still here? If there is any question, you guys can ask me. All right. Marketing is the process of identifying. Very good. Huda Mudassir. So can you speak a little louder? All right, I can. I hope I'm clear. My voice is clear now.
All right, Twitter वाला question. Yeah, it depends on several factors. Of course, there are machines and all जो कि इस्तेमाल हो रही होती हैं. But the answer to that particular question is that Twitter only takes 1.5 minutes to produce a single car in its factory. 1.5 मिनट में वो पूरी एक गाड़ी तैयार कर देते हैं. और वो कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ऑपरेशंस में यूनिट 4 में. दैट हाउ दे डू दैट, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी 1-1.5 मिनट में तैयार होके वो रेडी कर देते, तो हाउ आर दे एबल टू particularly achieve that. So yeah, we're going to study that. Yeah, exactly. Only 1.5 minutes. Okay, yeah, we're going to study that in detail in unit 4. Now let's move on to the most important aspect of the business, क्योंकि हमें पेपर देना है मई जून में. सही है, एग्जामिनर जो है वो आ जाता है पेपर लेने के लिए. और पेपर जो है वो किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ऑलराइट. So guys, in the May June session 2026, you guys are going to appear for 2 papers of business studies. The first paper is paper 1. Alright. And हमारा जो वेरिएंट होता है वो होता है पेपर 1-2. बेसिकली पेपर 1 एंड वेरिएंट 2 होता है हमारा. सो ये टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी, मैं आप लोग को ये इंशाल्लाह जब पेपर दिखाऊंगा तो बताऊंगा. ऑलराइट. सो देखें, द फर्स्ट पेपर दैट यू अपीयर फॉर दैट इज पेपर 1. ठीक है. पेपर 1 में जो टाइम स्लॉट आपके पास होता है दैट इज 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes means that you have 90 minutes to solve the paper. And what does the paper consist of? बेसिकली 4 सवाल आएंगे आपके 20 मार्क्स के. ठीक है. देयर विल बी 4 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच, व्हिच मेक्स द टोटल ऑफ द पेपर टू 80 मार्क्स. एंड बेसिकली ईच क्वेश्चन will carry a set of questions in parts. So over here I have just divided that कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं. तो देयर इज अ शॉर्ट केस. 3-4 लाइनों में वो आपको एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके सामने पेपर का. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 3 to 4 क्वेश्चंस, जिसके 3 to 4 लाइंस, जिसके अंदर वो केस स्टडी बताएगा एक छोटी सी बिजनेस के बारे में. एंड आफ्टर दैट वो उस बिजनेस से रिलेटेड आपको सर्टेन क्वेश्चंस देगा. जैसे पार्ट ए में वो 2 मार्क्स की कोई डेफिनेशन पूछ लेगा. डेफिनेशन आपकी कोई बिजनेस की टर्मिनोलॉजी की होगी, जैसे डिफाइंड मार्केटिंग, और अभी आपने जवाब दिया कि व्हाट इज मार्केटिंग, तो वो पूरी डेफिनेशन में काउंट होगा. तो इसी तरीके के डेफिनेशन के सवाल आएंगे पार्ट ए और पार्ट बी में. या कोई आइडेंटिफाई करने के लिए चीज दे देगा, जैसे आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस, अ सोल ट्रेडर बिजनेस एंड अ पार्टनरशिप बिजनेस. तो आपने बस ये लिखना है सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, यू विल गेट देम 2 मार्क्स. सो देयर आर डिफाइन एंड आइडेंटिफाई क्वेश्चंस. देन देयर इज आउटलाइन क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. इसके अंदर आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, थोड़ी और ज्यादा. देन देयर इज अ 6 मार्क क्वेश्चन ऑफ एनालाइज. एनालाइज के अंदर यू हैव टू गिव इम्पैक्ट्स. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि अगर बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होंगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो एनालाइज वाले क्वेश्चन में मुझे ये बताना है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द लास्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट ई. और पार्ट ई में बेसिकली आपका जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, कि इसके अंदर आपको अपना ओपिनियन देना होता है कि व्हाट डू यू थिंक इज राइट और व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग. सो बेसिकली ये 5 सवाल आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, और ये 20 मार्क्स जो है वो इसमें डिवाइडेड होते हैं. सो 2 4 6 आपके 20 मार्क्स बनते हैं. और इसी तरीके के सेम फॉर्मेट पे आपके 4 सवाल आते हैं. इसी सेम फॉर्मेट पे आपके 4 सवाल होते हैं. एंड द टोटल ऑफ योर पेपर 1 इज 80 मार्क्स. So let me just also show you a paper, a question paper. Yeah. So you can see there's this is a summer 23 paper, May June 2023 का पेपर है. ठीक है. Yeah, a good question. I'll just show you this. Again, there's a case study. ठीक है. There's a case study over here. और उससे रिलेटेड जो है वो FBW का ये केस स्टडी है. उससे रिलेटेड एक ब्रेक इवन आपका एक टॉपिक है, उसका एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है. और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पे यू हैव अ 2 मार्कर क्वेश्चन एज आई सेड, जिसमें आइडेंटिफाई है. देयर इज आल्सो सम
time you get calculation question, तो short calculation आ जाएगी. This is also 2 marks question. Part B. Part C is 4 mark question. Part D is analyze and explain, which is 6 marks question. And part E is again a 6 mark question, जिसके अंदर आ जाता है do you think and justify का keyword. Now there was a question over here on the screen that what is the difference between part E and part D and part E. तो देखें बच्चों, पार्ट डी के अंदर जो है बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन एंड एनालाइज. ठीक है, इसके अंदर आपको कोई अपना ओपिनियन नहीं देना होता. ऑलराइट, कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्वेश्चन है टू बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसके बेनिफिट और इसका इम्पैक्ट बताना होगा. यहाँ पे आपको कोई अपना ओपिनियन नहीं देना होगा. ठीक है, बट व्हेन वी कम टू द ई पार्ट के अंदर वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन कि मेरे हिसाब से क्या चीज सही है, मेरे हिसाब से क्या चीज गलत है. तो बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्ट डी एंड पार्ट ई इज दैट इनके मार्क्स तो सेम है, लेकिन पार्ट डी में देयर इज नो ओपिनियन रिक्वायर्ड, पार्ट ई में यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट डी एंड पार्ट ई. तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने था. आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. देखें सेम स्ट्रक्चर. तो इसी तरीके के पेपर 1 के अंदर यू विल बी हैविंग 4 different types of questions और उसको आपने आंसर करना है to get the 80 marks. Is there any query regarding paper 1, guys? Please, you can write it in the chat box. Of course it is. Yes, guys. Any queries regarding paper 1? All right. पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ पेपर 2 रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज देयर इज ओनली वन केस स्टडी. एक बड़ी केस स्टडी होती है, इसके अंदर बिजनेस के बारे में आपको बताया जाता है. एक पर्टिकुलर बिजनेस जैसे कैन है फॉर एग्जांपल, तो कैन इज अ बिजनेस, तो पूरा कैन का आपको डेटा दिया जाएगा और उस डेटा को आपने रीड करके उससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना होगा. So again over here you have 1 hour 30 minutes, that is you have got 90 minutes to solve this particular question. There are 4 questions in this paper as well and each carries 20 marks. But this time it's not short questions. इसमें आपके 8 और 12 marks के questions आते हैं. Right? For example, question number 1 will carry one part A of 8 marks, part B of 12 marks. Question number 2, part A 8 marks, part B 12 marks. Question 3 same. Question 4 part A 8 marks, part B 12 marks. तो टोटल जो आपका पूरा बनता है वो 80 marks का बनता है in paper 2 as well. So let me just show you a paper 2 as well. So over here basically I've just solved this paper with my previous students. तो यहाँ पे देखें this is a case study by the name of Everyone Theatre. ठीक है, ये एक पूरा एक केस स्टडी है. सही है, और इसी केस स्टडी पे यू हैव गॉट योर क्वेश्चंस. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट लेट इट गो थ्रू. Yeah, so this is the case study and then we have question number 1. Question number 1 is of 8 marks. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका 8 marks का होता है. And then we have question number 1 part B which is of 12 marks. Question number 1 का part B which is of 12 marks. तो अब बेसिकली ये मैंने आपको पेपर पैटर्न तो बता दिया है कि कितने कितने मार्क्स के पेपर आते हैं. और पूरे साल हमारा जो मेन फोकस होगा ना बच्चों, आई विल बी गिविंग यू अ वर्कबुक एज वेल. बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन है फॉर द पास्ट 10 years, मैंने उसकी एक वर्कबुक बनाई हुई है. और उस वर्कबुक में क्या होता है कि बेसिकली आपका एक, जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वी आर डन विद वन चैप्टर, हम उस वर्कबुक में से उस चैप्टर के पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे so that you guys can practice writing answers then and there.
तो उसमें आपको जगह भी दी हुई होगी, सही है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर एक दिन पर्टिकुलरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो उसके अंदर हम लोग क्या होगा कि उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर का स्ट्रक्चर करा जाता है, दैट एक एक लाइन में आप क्या लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। सो बिकॉज ये मार्क्स तो दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट हाउ डू यू सिक्योर दीज मार्क्स? आपको 6 मार्क्स के आंसर में 6 मार्क्स कैसे मिलेंगे, आपको 8 मार्क्स के आंसर में 8 मार्क्स कैसे मिलेंगे, मैं आपको वो सिखाऊंगा इन द क्लासरूम। तो बेसिकली क्योंकि पूरे साल में सबसे मेन चीज यही है, बिकॉज सी when we are how are we basically communicating with the examiner? हम कोई ओरल एग्जाम तो दे नहीं रहे जाके कि भाई हम जाके एग्जामिनर हमसे सवाल करेगा, हम उसको डायरेक्टली वर्बली जवाब दे देंगे। नहीं, the only way to communicate to the examiner is by writing a good answer. आपको बहुत अच्छी बिजनेस आती है, आपने पूरा साल बहुत मेहनत करके एक एक चीज आपने याद करी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। But if you're not able to write a good structured answer, you will not get marks. एग्जामिनर ये क्लियरली कहता है कि भाई अगर बच्चे ने सही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करा आंसर लिखने का, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो पूरा साल है वो या सिलेबस कवर करने के साथ साथ जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बिजनेस, because that is the only way that we can communicate to the examiner. So I hope guys आप लोग को पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। Alright, is there any queries guys? जी बच्चों, any queries? अली रहमान, okay, आमना, अरीशा, अरीबा, there's तानिया, फातिमा, जहरा, गौतम, हिबा, हुदा, जवाद, any queries guys? All clear. All right. Okay. All right, guys. So this is our paper pattern, and now let's move on to a very small topic. Just just to introduce a small topic to you guys. Yeah, of course. For the Amna, to learn the chapters, I have my notes. ठीक है, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, सही है, समराइज्ड ब्रीफली। फिर इसके बाद एक टाइप्ड वेरिएंट भी है इन नोट्स का, जिसके अंदर जो मेन मेन आपके डेफिनेशंस होती हैं, आपके जो जो लर्निंग वाला एस्पेक्ट है, वो सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट कि सर याद कैसे करेंगे चीजें। ऑफ कोर्स आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज, तो उनको आपने याद करना पड़ेगा। फिर जाहिर सी बात है उसका मैं आप लोग का असेसमेंट या क्विजेस भी लूंगा। तो उससे जो है वो आपकी प्रोग्रेस भी पता चलती रहेगी। बिकॉज सी द थिंग इज दैट के ऑफ कोर्स इट्स ओ लेवल्स O3, ठीक है। एक अब इस साल ना आप लोग को सिर्फ 3 पेपर नहीं देने, इस साल आपको 5 पेपर देने। थिंग्स गेट रियली डिफिकल्ट एट टाइम्स, ठीक है। तो इनशाला पूरी सपोर्ट मिलेगी आप लोग को भी। एंड जो मुझे आप लोगों से चाहिए, सही है, वो चाहिए कि आप लोग सीरियसली चीज़ों को लें, ठीक है। जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो क्विजेस के अनाउंसमेंट हो रही है, बस आप लोग ने वो चीज़ें पार्टिसिपेट करनी है क्लास में, सही है। हंसी मजाक हर चीज़ होगी, ठीक है, पढ़ाई भी होगी, सारी चीज़ें करेंगे, बट जो चीज़ें जो होमवर्क वगैरह दे रहा हूँ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना आपके लिए, सही है। एंड द मेन थिंग दैट यू गाइस हैव टू डू इज सेल्फ स्टडी। मैं आपको जितना भी अच्छा पढ़ा दूं ना, सही है, आप जब तक खुद से लेके नहीं बैठेंगे ना, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं होगी, तो यू गाइस कैन नॉट रिमेम्बर द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास आते हैं, क्लास में आप बैठे, आपने क्लास ली, बहुत अच्छा समझ आया आपको, आपने घर गए, 1 हफ्ता हो गया, आपने फिर वो टॉपिक दोबारा रिविजिट नहीं करा, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे। फिर या तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, या तो मैं आपको दोबारा से कोई रिविजन क्लास दे रहा हूँ जिसमें मैं वो सारी चीजें दोबारा से करवा रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाई डोंट यू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार क्लास ली सर की, सर ने पढ़ाया, सर उसका समझ आ गया, चले भाई घर जाके उसको एक दफा देख लिया, एक दफा देख के दिमाग में उसको बिठा लिया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। उसके थोड़े क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व, क्वेश्चन कर सॉल्व करके आप लिटरली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पे भेजें, सर ये चेक करके बता दें, इसका फीडबैक दे दें, सही है, मैं आराम से आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, सही है। मेरा वो नहीं है कि मैं जो हूँ वो
बच्चों को मैसेज देखा है, नहीं देखा, नहीं, एक एक बच्चे को रिप्लाई मिलता है, एक एक बच्चे को उनकी क्वेरीज, उनका फीडबैक मिलता है। सो सपोर्ट मेरा आपको पूरा रहेगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो द फर्स्ट चैप्टर इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ कि आप लोग को कितना बिजनेस के बारे में पता है, ठीक है। अब बताएं मुझे कि बिजनेस क्यों खुलता है। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि यार लेट्स स्टार्ट अप अ बिजनेस, तो क्या वजह हो सकती है? या आप लोग अगर कभी सोचते हैं कि यार मुझे आगे बिजनेस खोलना है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गाइस आर हैव टेकन कॉमर्स, तो आपने अगर सोचना है आगे कि यार मुझे बिजनेस खोलना है, शायद कुछ बच्चों का अभी भी हो बिजनेस, सही है, आई रियली डोंट नो अभी, लेकिन शायद आप लोगों को किसी का है कोई बिजनेस, तो वो भी बता दें। और मुझे ये भी बता दें कि क्या बिजनेस क्यों खोला जाएगा, या आप लोग को अगर कभी बिजनेस खोलने का मौका मिले, तो वाई डू यू गाइस, okay, there's an answer here: to earn money and become independent. Okay, Ariba, you have online bakery. Good. I would like to order brownies if you have. Stanley tumblers, ओहो यार, स्टैनली टम्बलर्स ना, उनकी एक बात जो मुझे सही नहीं लगती, बहुत बड़े, मतलब उनको कैरी करना ही एक टास्क है, डिफिकल्ट। लेकिन नहीं, ट्रेंडिंग चीज है, बहुत अच्छी है। ऑलराइट, chocolate and okay, Ariba, you can send me the link on Instagram. I'll surely order. To pursue a passion or idea. Okay, very good. To pursue a passion. Huda, what's your passion? That's really good. There are some of my students who really like, painting, and basically unka apna, they have the Instagram page as well. Okay. म्यूजिक का पैशन है, तो कुछ स्टूडेंट्स अपने म्यूजिक इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, उसमें वो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, अपना म्यूजिक बनाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऑफ कोर्स अपने पैशन को दिखाना ठीक है, वेरी गुड। बट यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। ओके हिबा, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट, आई टेल यू हाउ टू स्टार्ट। बेसिकली सबसे पहले जो बिजनेस में बनाया जाता है, वो बनाया जाता है बिजनेस प्लान, कि आपका आइडिया क्या है, आप क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, फिर आप क्या कैसे, मतलब ये सारी चीजें आई हेल्प यू आउट इन दैट, और थ्रू आउट आपको समझते आता रहेगा। Alright, there's a very tech, you can say a good answer over here that we have. सब मिल के बिजनेस करते हैं, ट्रूली मजा आएगा। हमारी क्लास का भी बिजनेस होना चाहिए, वी कैन डू दैट, मतलब जो फिजिकल क्लास होती है, वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। सो या, alright, so Ali Rahman says to fulfill the existing and increasing demands and needs of the people and to generate profit. Okay, that's a very good answer, Ali Rahman, that के आप जो है बिजनेस इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करा जाए, एंड बिजनेस प्रॉफिट करा जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, लेट्स डू इट। अच्छा आइडिया है, बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, फिजिकल क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो कंटिन्यूइंग अली रहमान आंसर, ठीक है। तो बेसिकली देखें, बिजनेस एक्टिविटी होती क्यों है। अब फॉर एग्जांपल मुझे, लेट्स सपोज, बैठने के लिए चेयर चाहिए, सही है। अब मुझे बैठने के लिए चेयर चाहिए, सो दैट इज माय नीड, कि बेसिकली मुझे बैठना है और मुझे बैठने के लिए चेयर चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली बिजनेस क्या करता है? बिजनेस को पता चल गया, या किसी इंडिविजुअल को पता चल गया, लेट्स सपोज हिबा हिबा को पता चल गया कि सर को जो है वो बैठने के लिए चेयर चाहिए, ठीक है। अब सर की मैं नीड को फुलफिल कर सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं जाके चेयर बना लेती हूँ। या चलो अभी किसकी बेकरी है, अभी मैंने एक एग्जांपल अभी क्रिएट कर लेते हैं। अरीबा, अरीबा सेड यस, अरीबा हैज एन ऑनलाइन बेकरी। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या, अब मुझे ब्राउनी खाने का दिल कर रहा था, ठीक है। अब मेरी नीड है कि यार मुझे ब्राउनी चाहिए। अरीबा सेड सर मेरी बेकरी है, सही है, तो मैं आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, मैं आपको ब्राउनी जो है वो बना के दे सकती हूँ, ठीक है। अब अरीबा ने पहले तो आइडेंटिफाई करा मेरी नीड को, कि सर को क्या चाहिए, ब्राउनी चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करा, सर से बात करके। जैसे मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे मार्केट रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कंज्यूमर से बात करते हैं, और कंज्यूमर से बात करके उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कि यार कंज्यूमर साहब आपकी नीड क्या है। कंज्यूमर, आई होप यू गाइस नो वो द कंज्यूमर इज, कि बेसिकली जो मार्केट में जो लोग होते हैं जो खरीदते चीजें,
हम लोग जैसे मार्केट जाते हैं खरीदने चीजें, अब जैसे मैंने ये आईपैड खरीदा है या लैपटॉप खरीदा है या कैमरा खरीदा है, तो ये सारे आई एम अ कंज्यूमर कि मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं बेसिकली दे हैव नीड्स, दे हैव वांट्स। बेसिकली नीड्स जो होती है उनकी, जैसे मुझे कुछ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, तो दैट इज माई नीड। सही है, मुझे ब्राउनीज खानी है, दैट इज माई वांट, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी नीड थी, मुझे चाहिए था ब्राउनी, ठीक है। अरीबा ने उस नीड को आइडेंटिफाई करा, अरीबा गई, उन्होंने अपनी बेकरी पे ब्राउनी बनाई और मुझे भिजवा दी। सही है, तो बेसिकली ये क्या हुआ कि अरीबा ने मेरी नीड सेटिस्फाई करी, उसके अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर अरीबा को कॉस्ट आई होगी बनाने के लिए ब्राउनी, और उसने मुझसे एक प्राइस चार्ज करी होगी, तो मैंने उसको वो प्राइस पे करा, ठीक है, जिसमें से अरीबा का कॉस्ट भी कवर हो गई और अरीबा के बिजनेस को प्रॉफिट भी हो गया। तो अली रहमान ने जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी, दैट इज के कंज्यूमर्स की डिमांड को हम सेटिस्फाई करते हैं और उससे जो है वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। Okay, there's a jewelry business as well. Okay, Misha, that's really good. So what you guys can do is कि इंशाल्लाह जब हमारा ये Instagram, sorry, WhatsApp का ग्रुप बनेगा, so you guys can share your businesses there as well, and we will also plan up of starting our own business. अपनी क्लास का भी एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। Alright, so यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो नीड्स और वांट्स, ठीक है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड्स को और उनकी वांट्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और फिर उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। नाउ कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट? नीड और वांट में कोई फर्क बता सकता है? यस गाइस, नीड एंड वांट का फर्क। नीड इज एसेंशियल फॉर लिविंग, वांट इज इट, ऑलराइट, सो कैन यू जस्ट गिव एन एग्जांपल अरीबा? Okay, that's good. Misha, you're also right. Need is essential for survival, of course. We can't live without needs, our needs, and can live without wants. Okay. Food is our need. Oxygen, shelter. Okay. तो oxygen. Okay. Very good. Food, water, shelter. ये सारी चीजें हमारी needs होती हैं because these are essential for living. And okay, phone is a want. क्या आप लोग को लगता है फोन आजकल एक want है? I think is a it's a need. नीड बन चुका है। अब आप लोग तो बगैर बगैर फोन के, बगैर सोशल मीडिया के तो नहीं रहते होंगे, राइट? या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नोकिया इज नीड। नो नो, आईफोन, नोकिया, जो देखो ब्रांड जो होते हैं ना बेसिकली, जब ब्रांड अटैच हो जाता है ना, तो ब्रांड जो है वो बेसिकली फिर आपका एक बॉन्ड बन जाता है कि अब मुझे फोन चाहिए। अब फोन तो मतलब कोई भी, मतलब एक छोटा सा फोन भी आप रख लो, नहीं चाहिए आईफोन ही, so of course that is a want. Need is something people can not survive without, for example, water, clean clothes, etc., while our wants are unlimited and not essential for it. आईफोन का लेवल है, बिल्कुल है, ऐसा ही है, आईफोन का लेवल है। ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्रांड। तो हम लोग जो ब्रांडिंग पढ़ेंगे मार्केटिंग में, फिर हम लोग जो है वो ब्रांडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आईफोन, व्हाट एक्चुअली मेक्स आईफोन, एंड आईफोन कैसे इतने ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। While our wants are unlimited and excellent, Ali Rahman, again a very good answer. So yeah, कि basically need is essential for living and wants are non-essential for living. Very good. तो बेसिकली जब आपको सर्वाइवल के लिए कोई चीज चाहिए, जैसे खाना चाहिए, खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, दैट इज अ नीड, तो वो भी कौन सेटिस्फाई करता है? बिजनेस सेटिस्फाई करता है। और अगर वांट्स की बात करें तो वांट्स आर नॉन एसेंशियल फॉर लिविंग, लेकिन लोग वांट्स भी डिमांड कर रहे होते हैं, जैसे एक अच्छा बड़ा घर, एक अच्छी बड़ी गाड़ी। तो ये सारी चीजों को भी सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, बिजनेसेस अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि यार बिजनेस एक्टिविटी होती क्यों है, तो बिजनेस एक्टिविटी जाहिर सी बात है इसलिए होती है ताकि वो सेटिस्फाई करा जाए कंज्यूमर्स की नीड्स को और कंज्यूमर्स की वांट्स को। यस, यू कैन शेयर हुदा, व्हाट समथिंग क्रेजी दैट यू नो अबाउट आईफोन, यू कैन शेयर इट विद अस एज वेल, द क्रेजी थिंग। दैट सैमसंग मेक्स, ऑफ कोर्स दे डू। बेसिकली एप्पल की जो स्क्रीन है, ठीक है,
एप्पल की स्क्रीन सैमसंग बनाता है, बिकॉज सैमसंग इज नॉट जस्ट अ फोन मैन्युफैक्चरर। सैमसंग के बहुत सारे बिजनेस है, मतलब सैमसंग रियल स्टेट में भी है, ठीक है। सैमसंग की बहुत सारी शेयर होल्डिंग्स भी हैं, मैकडोनल्ड्स में भी सैमसंग की शेयर होल्डिंग्स है। तो ये सो सैमसंग इज हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। सैमसंग बेसिकली ये जो जितने भी आपके फोन्स हैं, सही है, इनके पार्ट्स वगैरह भी बना रहा होता है। तो दैट्स एक्चुअली ट्रू दैट द स्क्रीन ऑफ आईफोन इज मेड बाय सैमसंग। इसको हम कहते हैं बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में स्ट्रेटेजिक अलायंस। जो हम ए लेवल्स में पढ़ेंगे ना, कि कैसे दो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं मार्केट में, वो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। Needs are the goods. Okay, Manahil have got an answer as well. Needs are the goods and services we need for survival. Wants are goods and services customer desire, but are not essential for survival. Very good. So the main difference between need and want is that needs are essential for survival and wants are non-essential for survival. All right, Ariba, if it's possible right now, you can share your Instagram page on the chat only, ताकि हम लोग सब उसको फॉलो करके जल्दी से ऑर्डर कर लें, क्योंकि शाम का वक्त है और भूख भी लग रही है। चलो, वैसे आज तो नहीं, सेम डे पॉसिबल तो नहीं होगा डिलीवरी आई गेस, बट विल श्योरली ऑर्डर। ऑलराइट, सो गाइस, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। सही है, आई गेस इतना ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई, बिकॉज वी हैव डिस्कस द सिलेबस, वी हैव डिस्कस द थिंग्स। अच्छा, एक चीज आप लोग को मैं दिखा रहा था, वो अपना यूट्यूब चैनल दिखा रहा था। तो आप लोग, if you guys are interested in my YouTube channel, you guys just I'll just give you a short overview यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आई हैव ए लेवल्स का भी जो है वो सारा कंटेंट है यहाँ पे अवेलेबल। AS A2 O लेवल्स, सो रिविजन वीडियोस भी हैं इसके अंदर, और रिविजन वीडियोस जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पे जो है वो यू गाइस कैन ऑल्सो कवर टॉपिक्स एज वेल। तो ये तो खैर फ्री, मतलब ये बिल्कुल ऐसी है कि ये वीडियोस जो है वो सबके लिए, दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं उन लोग के लिए है। बाकी जो एक स्पेसिफिक और अपना एक पोर्टल वाली जो वीडियोस हैं जो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड की गई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूंगा, बट दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम मी। सो या, दिस इट इज व्हाट इट इज। बेटा, द प्रोसीजर इज सिंपल। राफे भाई, यू माइट बी इन कांटेक्ट विद राफे भाई। राफे भाई जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें देखेंगे। सो यू गाइस कैन रजिस्टर थ्रू राफे भाई। एंड गाइस, अच्छा, जस्ट टू बी satisfied, because जाहिर सी बात है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है। कैन आई जस्ट हैव अ फीडबैक ऑफ टुडेज क्लास एज वेल? ठीक है, if you guys can just write it on the chat box, or you can give the feedback to Sir Rafe, that will be really good. Moonlit Charms एक पेज है हमारे पास। अच्छा, okay, just let me highlight the pages of the students businesses. Moonlit Charms, okay, and we have Chocolate Bites, very good. Let me just all right, बेटा, अली रहमान, इट सर राफे आपको सारी चीजें बताएंगे। सर राफे विल टेल यू Pookie Kiwai Heaven. Okay. All right. I'm sharing my Instagram as well here. So you guys can just share, DM me your pages. मैं आसानी से follow कर लूंगा। Underscore AJAZ Saifullah underscore Ajaz। वैसे आप YouTube से भी जाएंगे तो वहां पे भी मेरा लिंक, पता नहीं कीबोर्ड को क्या होगा। स्टैनले, ओ कॉफी मग्स, यार मुझे यार कॉफी मग ऑर्डर करना था नए सेशन के लिए, तो आई विल बी ऑर्डरिंग दैट एज वेल। फातिमा जहरा, यू कैन आल्सो शेयर विद मी। ठीक है, हिबा आप शेयर कर दिएगा, आपका पेज फॉलो हो जाएगा। ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट बिजनेस टेल्स यू अबाउट।
हुदा मुदस्सिर, दिस इज व्हाट बिजनेस इज, फुल प्रमोशन। प्रमोशन ही चल रही है। देखा, आप लोग को बिजनेस करना भी प्रमोशन करना भी आ गया। टू 10 ग्राम, ओके। थैंक यू गौतम, आई अप्रिशिएट इट। ये लेकिन आपने बड़ी खतरनाक पिक्चर लगाई हुई, मैं आपको बोल नहीं सकता कि आप क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू अरीशा, थैंक यू। ओके। ऑलराइट गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे टुडे, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप लोग से फिजिकल क्लासेस में भी मुलाकात होगी, जो बच्चे फिजिकल आ रहे हैं एट कैन। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं उनसे ऑनलाइन भी बात होगी, ऑनलाइन पे भी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। सो यू गाइस कैन प्लीज, द टास्क दैट यू हैव टू डू टुडे इज कि प्लीज आप लोग अपना फीडबैक रिकॉर्ड कराएं टू मिस्टर राफे, सर राफे। उनको आप बताएं, एंड क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी प्रोग्रेस में है, आई गेस अभी कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है ऑन द फीसेस एंड ऑल। तो द अर्लियर यू रजिस्टर, द अर्लियर यू गेट योर सीट्स इन बैच ए, क्योंकि फिर थोड़े टाइम बाद बैच ए फिल हो जाता है, फिर बैच बी स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है। तो यू गाइस जस्ट सिक्योर योर सीट एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह, ठीक है। सो विल बी मीटिंग इन द क्लासरूम एज वेल, एंड डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह भी हैं, तो वो भी आप फॉलो करें मुझे, ठीक है। आई फॉलो यू बैक ऑफ कोर्स, ताकि क्योंकि उस पर मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट कर रहा होता हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज, नाइस मीटिंग यू ऑल, बाय बाय। जस्ट सर्च माय नेम सैफुल्लाह_एजाज, आ जाएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Yes, Ali Rahman, Nisha Kumari, do you guys have any questions? I'm waiting for you guys to leave so that I can end the class. And if there is any question, you guys can ask me. All right.